Today I will start new class, that is new topic, that is mitosis. You know cell division. Cell division are of two types. One is called mitosis, another is called meiosis. Mitosis occurs only in somatic cells, whereas meiosis occurs in germinal cells. But today I will just start mitosis. What is mitosis? Mitosis is a type of cell division. In mitosis, the cells duplicates itself. The term mitosis was first of all given by the famous scientist W. Fleming in 1882. It occurs only in somatic cells, Mitosis lasts for only 5% of the total time. But what is mitosis? It is very important. What is mitosis? Definition: mitotic division results in an increase in the number of the cell without any change in the genetic material. Genetic material, that is structure and number of structure. First is the structure and number of chromosomes. This is called mitosis. I hope you understand. This definition is a very clear definition. The process of mitosis occurs in two phases. First is called karyokinesis and second is called cytokinesis. What is karyokinesis? Karyo means nucleus. The division of nucleus is known as karyokinesis. Whereas cytokinesis, what is cytokinesis? Cytokinesis, division of what? Cytoplasm, is called cytokinesis. The first, karyokinesis, division of nucleus. It has following phases. The phases: first phase is called prophase, second is called metaphase, third is called anaphase, and last is called telophase. These are the different phases of karyokinesis. One by one I did. First is prophase. Prophase is the first phase of the cell division of mitosis. In these phases, so many changes occurs. First, theme. It is a theme thread-like thread. Condensing. Chromosome means condensing. Condense रहता है chromosomes. Second is इसका structure कैसे रहता है? What is the structure? The cell is spheroid. Cell is spheroid. Retractile and viscous. Retractile रहेगा and it is viscous also. Third important character, chromatid become shorter. Chromatid यहाँ पर shorter and thicker due to the presence of water. And next important character, two pairs of centrioles, each one surrounded by the ray, that is the astral rays, which is composed of, ये astral ray किस चीज का बना होता है? It is composed of microtubules. Nucleus plus here disintegrates. The late mitosis, late phase of prophase, not mitosis, late phase of prophase. Here, nuclear membrane start to disappearance. During this phase, spindle fiber is not growing but start to grow, and it is the largest phase. यह क्या है? सबसे largest phase है. किसका? Cell cycle किसका? Of mitosis का. It is the largest phase. Second phase, metaphase. Meta means metaphase. It is a very important phase. Metaphase. Meta,
that is after, and it is actually Greek word. Prophase, metaphase, anaphase, telophase, all are, ये सब क्या है, ग्रीक शब्द से बना है। तो प्रोफेज का माने हम पहले है, प्रो माने होता है बिफोर, और फेज का माने होता है, दैट इज द फेज को हम लोग बोलते हैं फैसिस, PHASIS, इसका फैसिस बोलते हैं। फैसिस का माने होता है, व्हाट डज इट मीन? फैसिस मींस अपीयरेंस, अपीयरेंस माने उसका प्रकट होना। उसी तरह आप सेकंड हम लोग स्टेज किए हैं, दैट इज द मेटाफेज। मेटा मींस आफ्टर, आफ्टर प्रोफेज, दैट इज मेटाफेज। हियर द सर्टेन चेंजेस आर ऑकर्स। फर्स्ट, क्रोमोसोम्स यहां पर शॉर्टर एंड थिकर। क्यों शॉर्टर थिकर होगा? व्हाई? बिकॉज द किस का होगा, वाटर जो होता है धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसमें गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, शॉर्टर हो जाता है एंड थिकर हो जाता है। सेकेंड कैरेक्टर, क्रोमोसोम अरेंज कर जाएंगे, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इन इक्वेटोरियल प्लान। कहां हो जाएंगे वो? बीच में आ जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लान। Centriole and astrals are present. And third one, phage, is very important phage, that is called ana. Ana, that is up. Up. Ana means up. It is also Greek word. Anaphage. Here are the certain characters in anaphage. First is polar movement of chromatids due to शॉर्टिंग ऑफ, शॉर्टिंग में छोटा हो जाता है, शॉर्टिंग में शॉर्ट कर जाता है, छोटा हो जाता है, किस चीज का? ऑफ काइनेटोकोर, शॉर्टिंग ऑफ, अब क्या बोले, काइनेटोकोर, माइक्रोट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट कैरेक्टर, क्रोमोसोम्स अब किस तरह का अपीयर होगा, व्हाट इज द, इस अपीयरेंस को हम लोग अल्फाबेटिकली उसको बोलते हैं यू, भी और यू की तरह हो सकता है, या भी और जे की तरह हो जाता है, जे सेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ पोल, पोल से वो सेपरेट करने लगता है, दैट इज एनाफेज, है ना। अब टुवर्ड्स पोल की ओर ये जाएगा, धीरे धीरे टुवर्ड्स पोल की ओर जाएगा। नेक्स्ट फेज, दैट इज टेलोफेज। इसमें टेलोफेज में एन है, टेलो मीन्स टेल जो होता है, टेल सबसे बना, टेलो मीन्स लास्ट फेज होता है। इसमें फॉर्म 2 डॉटर न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब धीरे धीरे यहां बनना शुरू हो जाता है ना। न्यूक्लियस का भी अपीयरेंस स्टार्ट हो जाता है। स्पाइनल फाइबर यहां पर क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाते हैं, और नहीं तो शॉर्टर हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, आरएनए सिंथेसिस रीस्टार्ट, आरएनए का फिर से बनना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड आरएनए सिंथेसिस रीस्टार्ट। नेक्स्ट जो है इवेंट है, जिसको हम लोग साइटोकाइनेसिस, अभी हम बोल चुके थे साइटोकाइनेसिस, फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, क्या होता है साइटोकाइनेसिस? साइटो माने साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, दो भागों में डिवाइड करके इस फेजेज में क्या हो जाएगा, एक सिंगल सेल से दो सेल्स बन जाते हैं, यही है साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर ठीक बीच में जो साइटोप्लाज्म के ठीक मिडिल ऑफ द साइटोप्लाज्म फॉरो होता है, फॉरो हो जाने से वहीं से वो दो अलग अलग सेल्स में वो टूट जाते हैं, एक पैरेंटल से एक डॉटर सेल्स में। तो पहला है इसमें कुछ, इसमें सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आल्सो देयर, कंस्ट्रक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म इनटू 2 सेपरेटेड सेल्स। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म डिवाइड्स बाय प्रोसेस ऑफ क्लीवेज। बाय द किस प्रोसेस से होता है, व्हाट इज क्लीवेज? क्लीवेज माने डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, दैट इज क्लीव कर जाता है, क्लीव मींस बढ़ जाना, क्लीव मींस डिवाइड कर जाना या बढ़ जाना, दैट इज कॉल्ड क्लीव्ड। आगे आप लोग पढ़ेंगे, क्लीवेज बहुत तरह के होते हैं, उसको हम लोग क्लीवेज को भी पढ़ाएंगे आगे। उसके बाद इससे बना क्या, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं फ्रॉम 1 सेल, एक डॉटर सेल बने और किससे बने, वो पैरेंटल से बने, तो पैरेंटल से डॉटर सेल बने, दोनों सेल, और इसी को हम लोग, दिस इज होल प्रोसेस इज कॉल्ड माइटोसिस। अब हम थोड़ा सा माइटोसिस के बारे में, कुछ सिग्निफिकेंस माइटोसिस का है, हर चीज का क्या होता है, कुछ सिग्निफिकेंस होता है, उसका सिग्निफिकेंस माने होता है उसका इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस मींस इंपॉर्टेंस। तो माइटोसिस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट हेल्प्स, ये क्या हेल्प करता है, द सेल इन मेंटेनिंग प्रॉपर साइज। सबसे पहले ये
सेल का जो साइज है, प्रॉपर साइज है, उस साइज को यह क्या करता है, मेंटेन करता है। दूसरा क्या है, ये हेल्प क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ एन इक्विलिब्रियम इन द, किसके बीच में इक्विलिब्रियम, इन द अमाउंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए इन द सेल। डीएनए और आरएनए के सेल में इक्विलिब्रियम को यह क्या करता है, स्थापित करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ। नेक्स्ट जो है, इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी, क्या अपॉर्चुनिटी देता है, फॉर द ग्रोथ, ग्रोथ का एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट किसका करता है, ऑफ ऑर्गन्स का। तो ग्रोथ को हम लोग फिर 3 भागों में, ग्रोथ में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। ग्रोथ में सबसे पहले हम लोग ग्रोथ में क्या, कौन चीज को डिवाइड करेंगे, ग्रोथ क्या है, रिपेयर। सेल अगर टूटता है, टीयर करता है, टीयर को, सेल को फिर ये क्या करता है, रिपेयर कर देता है, दैट इज रिपेयरिंग। दूसरा है रिपेयर करके फिर रीजनरेट कर देता है, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन, फिर से उस सेल को रीजनरेट कर देता है। और फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें है ग्रोथ में, रिप्लेसमेंट। क्या रिप्लेसमेंट माने, चेंज, चेंज, रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाट, रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाट, रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू, टिश्यू को रिप्लेसमेंट करता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है, ये कुछ मियोसिस में भी हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है मियोसिस रिगार्डिंग, तो गोनाड्स जो बनते हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल गोनाड्स, एंड द सेक्स सेल डिपेंड ऑन द माइटोसिस, माइटोसिस पर ये क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, फॉर द इंक्रीज इन देयर नंबर, उनका जो नंबर को इंक्रीज, उनके ग्रोथ, आइदर इट मे बी स्पर्म, आइदर इट मे बी ओवम, उनके इंक्रीज, उनके नंबर को इंक्रीज के ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है, समझे। उसके बाद द क्लीवेज ऑफ द सेल, अभी क्लीवेज तुरंत बतलाए हैं, सेल्स सुनो पहले, क्लीवेज ऑफ द सेल्स, पूरे सेंटेंस को फर्स्ट, जस्ट आई गिव यू डिटेल सेंटेंस, देन आई विल बी एक्सप्लेन्ड one by one word. The cleavage of the cell during embryogenesis. First word embryogenesis, आप लोग पढ़े होंगे embryogenesis। एक है embryogenesis, second है and the division of blastoma and division of blastoma during, blastoma कब होगा, किस अवस्था में होगा, during blastogenesis, यानी blastogenesis formation of the blastula is blastogenesis। क्लीवेजन, डिवीजन ऑफ द सेल इज कॉल्ड क्लीवेज। इनमें भी ये जो है, इनका भी बहुत, माइटोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, समझ गए। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमने इसको बहुत इजी वे आप लोगों को समझाया है, हम समझ रहे हैं कि आई अंडरस्टैंड, यू ऑल ऑफ स्टूडेंट आर अंडरस्टैंड, बिकॉज जस्ट हमने दोनों शब्द को लिया, ताकि कि कुछ तुम लोगों की तरफ से हमको कंप्लेन आया था कि तुम लोग बोल रहे हो कि इंग्लिश में डायरेक्ट नहीं पढ़ाने से हिंदी इंग्लिश को मिला के पढ़ाइए तो हम लोगों को समझ में अच्छा आता है। इसलिए मैंने अभी मैक्सिमम जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों को वर्ड को हमने यूज किया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम लोग फिर इसका नोट्स भी तुम लोगों को हम लोग बाद में दे देंगे, है ना। उस नोट्स को आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोगों को जो ग्रुप्स में है उसमें हम लोग उसको नोट्स को भी भेजेंगे बाद में। आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग अपने ग्रुप्स के थ्रू, हम लोगों के यूट्यूब में भी जाएगा ये, उसके थ्रू आप लोग इसको, हम लोगों को कोई भी क्वेश्चन या कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया तो उसके बारे में आप यू मे आस्क्ड, दैट्स ओके, ओके।